So hello my dear friends, today we will start a new book, Grammar Pathways for Class 2, published by Children Voice Publication. So my dear friends, today we will start a new chapter and the name of the chapter is Preposition, chapter number 17. So let's start our chapter. Read the following sentences. चलिए इन्होंने हमें कुछ सेंटेंस दिए हैं, हमें उन्हें रीड करना है. सबसे पहले The rat is under the table. There are 6 apples in the basket. The boys are near the house. I distributed candy among the children. I met her at the railway station. She is fond of tea. He sat beside me. There is a long bridge over the river. Each of the above sentences has a word that connects one thing with another and shows how they are associated. तो इस सारे sentences में एक ऐसा word है जो दूसरे को दो चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ रहा है और बता रहा है कि वो कैसे कनेक्टेड है. यहाँ पे रैट और टेबल कैसे कनेक्टेड है? ऐसे कनेक्टेड है कि रैट जो है वो टेबल के नीचे है, मतलब अंडर. एप्पल्स आर इन द बास्केट, एप्पल्स बास्केट के अंदर है. द बॉयज आर नियर द हाउस. आई डिस्ट्रीब्यूटेड कैंडी अमंग द चिल्ड्रन. सो आई मेट हर एट द रेलवे स्टेशन. कहाँ मिले हम? रेलवे स्टेशन पे. तो ये सारे वर्ड्स क्या कर रहे हैं? दो चीज़ों को आपस में जोड़ रहे हैं. सो a preposition is generally followed by a noun or a pronoun. जो preposition है वो कहाँ आता है? वो noun और pronoun के बाद आता है. Like her pronoun at preposition. She is fond of tea. Okay. He sat beside me. There is a long bridge over the river. So, a word that shows the relationship of a noun or a pronoun with another word is in a sentence is called preposition. तो एक ऐसा word जो noun या pronoun का रिश्ता रिलेशन बताता है दूसरे word से sentence के, उसे हम preposition कहते हैं. चलिए, you can express the following relationships by preposition place. इसे हम preposition of place भी कहते हैं. तो the accountant is in the office. जब हमें पता चलता है कि किस चीज़ का क्या place है. I lean against the wall. तो इसे हम preposition of place भी कह सकते हैं. He is near the gate. He is behind the curtain. पर्दे के पीछे. Now time. इसे हम preposition of time भी कहते हैं. इसमें क्या क्या आता है? We rise with the sun every day. It is 20 minutes to 11. So this is preposition of time. Now purpose. We can say preposition of purpose. He took medicine for cold. किसके लिए ली? क्या पर्पस था मेडिसिन लेने का? कोल्ड हो गया था. The boy was shivering with the fever. तो बॉय क्यों शिवर कर रहा है? With the fever. So now possession. Preposition of possession. The boy with brown eyes. तो कैसी है बॉय की eyes? Brown है. He is friend of mine. So all these are the prepositions. Preposition of time, preposition of place, preposition of person, preposition of possession. So general rules for using prepositions. चलिए rules पढ़ लेते हैं. We use in with names, cities, countries. Countries और cities के साथ हम के name के साथ हम in use करते हैं. With the name of street. My aunt lives in Oxford Street. With the different parts of the day. I go for walk in the morning. In for things having no motion means non-living things. Into for things with motion. और जहाँ जिसमें motion नहीं है, motionless है,
वहां पे इन आएगा और जिसमें मोशन है वहां इनटू आएगा। द मैनेजर वॉज इन दी ऑफिस, कोई मोशन नहीं होता ऑफिस का। शी जम्प्ड इनटू दी लेक, लेक का मोशन होता है। ओके, इन बिफोर अ नाउन टू मीन एट द एंड ऑफ। ओके, शी विल रिटर्न इन अ वीक, तो हम किसी नाउन के आगे भी इन लगाते हैं एट द एंड ऑफ, टू मीन एट द एंड ऑफ। विद इन, अब आता है यूज ऑफ विद इन। बिफोर अ नाउन टू मीन बिफोर द एंड ऑफ। वी विल रिटर्न विद इन अ मंथ, मतलब किसी चीज के खत्म होने से पहले। सो विद इन, जब हम एक बात करते हैं किसी नाउन से, नाउन की बात कर रहे हैं और उसके खत्म होने से पहले की बात कर रहे हैं, तो आता है विद इन। एट, एड्रेस के लिए आता है, किसी चीज को आप एड्रेस कर रहे हैं। ही लिव्स एट हाउस नंबर 11 तिलक रोड। एट विद द वर्ड नाइट, हम नाइट के साथ भी एट यूज करते हैं। आई स्लीप एट नाइट, आई शैल मीट हिम एट नाइट। ऑन फॉर द थिंग्स हैविंग नो मोशन, जिसमें मोशन नहीं है वहां पे ऑन आता है। अपॉन फॉर द थिंग्स हैविंग मोशन। देयर इज अ पेंसिल ऑन द टेबल, द सिक मैन फेल अपॉन द ग्राउंड, तो जिसके आगे मोशन है वहां पे आएगा ऑन, सॉरी नो मोशन ऑन, एंड मोशन है तो अपॉन। टिल फॉर द टाइम, दे हैड नॉट रीच देयर टिल 9 o'clock। विद फॉर द इंस्ट्रूमेंट एंड बाय फॉर द एजेंट। शी कट्स द फ्रूट एंड वेजिटेबल विद अ नाइफ, किसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में आप बात कर रहे हो। द लायन वॉज किल्ड बाय द हंटर। फ्रॉम फॉर इंडिकेटिंग अ पॉइंट ऑफ टाइम और अ प्लेस, आप किसी पर्टिकुलर प्लेस पे किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे होंगे अगर, तो फ्रॉम। दे विल बी इन आगरा फ्रॉम 10 AM ऑनवर्ड्स, कि 10 बजे से, तो किसी पर्टिकुलर प्लेस पे किसी पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है तो फ्रॉम आता है। ही विल अराइव फ्रॉम MP। बिटवीन फॉर शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन और रिलेशनशिप फॉर टू एंड अमंग फॉर मोर देन टू, अगर टू का कोई रिलेशन बताना है तो ही इज सिटिंग बिटवीन, और अगर मोर देन टू है तो वहां पे आएगा अमंग, जैसे कि आई डिस्ट्रीब्यूटेड कैंडीज अमंग। ओके, बिकम्स बिटवीन A and B comes between A and C in the English alphabet, तो B कहाँ आता है, A और C के बीच में, तो A C का रिलेशनशिप बता दिया। They divided the sweets among the children, sweets कहाँ हो गई, चिल्ड्रन के साथ। Since with a certain point of time and for within a period, so since आता है किसी certain point of time के लिए और for आता है with a period of time। So my sister has been playing tennis since morning, सुबह से खेल रही है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है बच्चों यहाँ पे। और it has been raining for 1 hour, तो 1 घंटे से। Beside to indicate by the side of, और she sat beside her mother, किसी चीज के साइड में अगर बात हो रही है। Besides to indicate, besides, अब ऐसा आ जाता है to indicate in the addition to। What other sports do you like besides hockey, मतलब किसी चीज की बात हो रही है और उसके अलावा, उसके एडिशन में, उसके साथ और क्या, तो besides। ओके, चलिए कम टू आवर एक्सरसाइज। अब हम इन सब रूल्स को फॉलो करेंगे अपनी एक्सरसाइज में। सर्कल द प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। चलिए हमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं बच्चों और हमें प्रीपोजिशन सर्कल करना है। दे लिव इन आगरा, तो हम किसी पर्टिकुलर प्लेस की बात कर रहे हैं। They live in Agra, so in is the preposition. We use in the with the countries, name of the country or name of the city. So it is the name of the city. We shall see them in the evening. So in. The rain came at night. Night के साथ हम at use करते हैं. The puppy is sitting beside the girl. साथ में बैठा। The ball is on the table. Sonu is sitting between. किसी टू का रिलेशन आ गया, रवि एंड मोनू। The boy threw a stone into the pond, मोशन वाला है तो into आएगा। Cut the guava with a knife, किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए नाइफ आता है, at आता है with, अगर आप किसी चीज के साथ इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हो। Don't lean against the wall, ओके, मोशन आपका हो गया। That boy was standing behind the tree। So चलिए किड्स, मैंने आप सबके लिए प्रीपोजिशन सर्कल करे हैं। आप भी ऐसे और क्वेश्चन फाइंड आउट करिए और उनको सॉल्व करिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द बॉक्स। आई मेट देम, कहाँ है, किसी पर्टिकुलर प्लेस की बात हो रही है, एट द एयरपोर्ट।
They are fond of music. We should rise with the sun. It is 5 minutes of 11. He took medicine for cough. Okay? So like this, मुझे सारे रूल्स याद हैं, आपको भी वो रूल्स कहीं ना कहीं थोड़े याद करने पड़ेंगे और आप इजीली इन एक्सरसाइज को फिल कर पाएंगे। चलिए किड्स, 2 एक्सरसाइज हमने आपके लिए सॉल्व करके दिखाई। नाउ दिस एक्सरसाइज वी विल ओनली एक्सप्लेन एंड रेस्ट यू विल डू इन योर होमवर्क। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर, अंडरलाइन द करेक्ट वर्ड फ्रॉम दी ब्रैकेट्स। तो हमें कुछ पिक्चर दी गई हैं किड्स और आपको क्या करना है, इसमें से अंडरलाइन करना है। द बुक इज ऑन और अंडर कहाँ है बुक, ऊपर है या फिर नीचे, ऊपर है और ऊपर भी हम लिखते हैं ऑन दी टेबल। आई रॉट द पोएम विद और बाय with a pen. So 2 I have done for you and now rest 3 you will do. Look at these pictures and then take the correct word. Okay. So now this exercise you will do in your homework. You have to match the words with the correct picture, like in the basket, near the school, their house is near the school. The cat is under the table, the pen is on the tree, and the bridge is over the river. So they are near, their house is near the railway station. So like this, dear kids, you have matched the correct word with the correct picture. Okay? So I hope you have understand the chapter. Now practice the question which I gave you in the homework. So I hope kids you have understand what is there in the chapter. Now practice the questions which I gave you in the homework. Thank you. Bye bye. Thanks for watching.